Today we are starting with the first chapter of your 12th physics, that is rotational dynamics. Today we are going to cover basics, that is our introduction to circular motion. आपने 11th में already इसको थोड़ा बहुत देखा है. Just we are going to revise that. Okay. So what do you mean by circular motion? Circular motion is defined as the motion of a particle along the circumference of the circle. So अगर हमको किसी पार्टिकल को डिफाइन करना है, पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करना है, तो बेसिकली हम लोग को तीन टर्म्स की जरूरत होती है. डाटा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अगर हमें ये तीन टर्म्स पता है तो हम लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो ये जो टर्म्स है, these are used in your translational motion, that is your straight line motion. But in case of circular motion हम लोग ये तीन को यूज नहीं कर सकते. Let's take an example. Okay, suppose एक बॉडी है which is rotating in anti-clockwise direction. Okay, मान लो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. इनिशियली वो ए पोजीशन पे था, आफ्टर 1 सेकेंड वो चला गया बी पोजीशन पे, आफ्टर 1 मोर सेकेंड दैट इज 2 सेकेंड वो चला गया सी पोजीशन पे. तो अगर हम लोग इन नॉर्मल टर्म्स को लेके इसको स्टडी करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से देखूं, इनिशियली बॉडी आपका था पॉइंट ए पे, वहां पे आपका अगर आप लोग देखोगे डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 5 सेंटीमीटर. ओके, आफ्टर 1 सेकेंड वो चला गया बी पे भी आप लोग अगर देखोगे तो वहां पे क्या है, योर डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर. सी पे चला गया दैट इज आफ्टर 2 सेकेंड, वहां पे भी अगर तुम लोग देखोगे तो डिस्टेंस इज योर अगेन 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग को हमेशा क्या मिल रहा है, 5 सेंटीमीटर ही मिल रहा है. दैट मीन्स क्या मोशन हो रहा है क्या, नहीं. अगर हम लोग इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या लग रहा है, बॉडी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, बट एक्चुअली ऐसा है क्या, नहीं. तो बेसिकली हम लोग इन टर्म्स को यूज नहीं कर सकते टू स्टडी द सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज होते हैं, डाटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular velocity and angular acceleration. Okay, so ये जो terms है that are used to study the motion of the circular object, circular motion. Okay, so what is angular displacement? उससे पहले कुछ basic terms यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज रेडियस वेक्टर, which is also called as position vector. So what is a radius vector? Again we are considering this diagram. This is our particle. Radius vector, as the name suggests, radius vector क्या होगा, it is the line joining the center and particle. It is the line joining the center of the circle and the particle. It is always directed away from the center. Okay, it is also called as position vector. Position vector क्यों बोलते हैं, because it shows the position of the particle at every instant. That's why it is also called as position vector. So our first term, that is angular displacement. Angular displacement क्या होता है, it is angle traced by the radius vector at the center of the circle. मतलब ये पार्टिकल ए से बी तक चला गया. ए से बी तक जाने के बाद इसने जो एंगल बनाया, ये जो रेडियस वेक्टर ने एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हिच वी जनरली डिनोट बाय थीटा. एक बार वापस डेफिनेशन देख लेते हैं इसका. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Angular velocity, next term is your angular velocity.
What is normal velocity? Velocity is rate of change of displacement, or you can say displacement upon time. Displacement upon time. Okay. Same way में angular velocity जो होता है आपका, that is angular displacement angular velocity is equal to angular displacement upon time. Angular displacement is denoted by omega. Omega equal to d theta by dt. Now what is the meaning of this? D theta by dt means angular velocity is changing angular displacement with respect to time, or you can say rate of change of angular displacement. Okay, d theta by dt represents change with respect to time. Omega in vector form, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ओमेगा बार इक्वल टू डी थीटा बार बाय डी टी. Time is a scalar quantity, angular displacement is a vector quantity, omega is also vector quantity as it is angular velocity. Now next term is angular acceleration. Angular acceleration क्या होता है? Again, what is acceleration? Acceleration is change in velocity with respect to time, that is dv by dt. Similarly, angular acceleration is your change in angular velocity on time. It is denoted by alpha. Alpha equal to d omega by dt. In vector form it can be written as alpha bar equal to d omega bar by dt. Okay. So these are the three terms which are required to describe the motion of the particle in a circular motion. अब इनका डायरेक्शंस कैसे डिसाइड होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों का जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा सेम होता है, और ये डायरेक्शन डिसाइड कैसा होता है? दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड रूल. नाउ व्हाट इज राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल एक सिंपल सी चीज है. सपोज आपका जो कर्ल्ड फिंगर है, राइट हैंड को लेंगे आप लोग, सपोज आपका जो कर्ल्ड फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. एज इन केस इस केस में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ऐसा चला जाएगा. ओके, देन आपका जो थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी. सो व्हाट इज राइट हैंड रूल? बेसिकली कंसीडर योर राइट हैंड. इफ योर कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, देन thumb represents the direction of angular velocity or angular displacement. Okay, तो ये जो होंगे आपके angular velocity and angular displacement, ये हमेशा क्या रहेंगे? आपको perpendicular to the plane होंगे, मतलब as in case इसमें ये outward direction में आ जाएगा. Okay, अगर ये clockwise घूमता तो ये चला जाता उस साइड में, back side. Okay, angular velocity, angular acceleration की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो होता है this is also perpendicular to the प्लेन. पर यहाँ पे हमको केसेस कंसीडर करना पड़ता है. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मींस क्या? अगर स्पीड बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने फैन ऑन कर दिया, ओके, तो स्टार्ट में आपका जब फैन ऑन होगा तो इनिशियली क्या होगा? उसका स्पीड इंक्रीज होता चला गया था. तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा. जैसे कि सपोज दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एज पर राइट हैंड रूल क्या होगा? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी अपवर्ड. जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्पीड बढ़ रहा है, दैट इज मैंने फैन ऑन किया, उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन भी ये दोनों के सेम होगा. ठीक, अभी मैंने फैन को ऑफ कर दिया तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? स्पीड रिड्यूस हो रहा है, स्पीड रिडक्शन होगा. उस टाइम पे क्या होगा? जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन विल बी अपोजिट रहेगा, परपेंडिकुलर, बट इट विल बी अपोजिट डायरेक्शन. ओके, ये हम लोग ने अभी देखा था क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज लगेंगे हम लोग को सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए.
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म एज द नेम सजेस्ट, यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, कुछ तो चीज कांस्टेंट होगा और वो कुछ तो चीज होता है वेलोसिटी। तो बेसिक डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द अदर एंड क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ऑपोजिट, दैट इज उसमें क्या होगा, वेलोसिटी आपका जो है कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिक अगर एग्जांपल्स हम लोग देखें, नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, प्लैनेट, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अलोंग द सन या स्टार, ये एक एग्जांपल हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे क्या होगा, आपका स्पीड कांस्टेंट होगा। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द न्यूक्लियस, ये भी एक एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग ले सकते हैं। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी आया कैसा, अगर हम लोग देखेंगे ये सर्कल को अगर हम लोग एक स्मॉल छोटे से इंस्टेंट पे लेके जाए तो ये क्या होगा, आपका जो सर्कल है को हम लोग अगर एक स्मॉल इंस्टेंट पे लेके जाए तो पार्टिकल ऐसा लगेगा कि दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हर बार आपका पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे जो है फोर्स उसको क्या करेगा, अपनी तरफ वापस खींच लेगा, तो उसकी वजह से सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। बट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप लोग देखोगे तो उसका जो वेलोसिटी होता है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अगर एक बॉल है, बॉल को मैंने स्ट्रिंग से टाई कर रहा हूँ और उसको मैं घुमा रहा हूँ, तो जैसा मैं कोई भी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे उसको रिलीज करूंगा तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जो सर्कल के टेंजेंशियल रहेगा। बॉल घूम रहा है, घूम के अगर मैंने इस पॉइंट पे रिलीज किया तो वो सीधा टेंजेंशियल पोजीशन में मूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन, एक सिंपल सा रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर आर इज योर रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r। क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। अगर वो डॉट प्रोडक्ट होता है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। अभी यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ r बार क्रॉस ओमेगा बार, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो वेक्टर है वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ओमेगा पहला है तो ओमेगा पहला ही आना चाहिए। ओके, दिस इज रॉन्ग। देन रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन and angular acceleration. This is given by a equal to r alpha. Acceleration is equal to r into alpha, where here alpha is angular acceleration, r is again radius of the circle and a is linear acceleration. अभी यहाँ पे अगर हम लोग इस पार्टिकल को देखेंगे तो एक्सेलरेशन को हम लोग बेसिकली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन कंपोनेंट इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, सपोज मैं उसको 80 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज डिनोटेड बाय AR। AR जो है दिस इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, and AT is called as your tangential acceleration। ये जो acceleration है this is responsible for your centripetal force। आते उस टॉपिक पे हम लोग बाद में। बेसिकली यही जो है इसके वजह से आपका जो है इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, उसकी वजह से ही आपका जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है AR is equal to ओमेगा स्क्वायर R,
वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे, सो ए आर बार विल बी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ए सफिक्स आर, ओके। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? कि आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है, क्या मैं इसको AC भी लिख सकता हूँ, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि आपका रेडियल एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एज वी कैन सी फ्रॉम हियर, हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड जो रेडियस वेक्टर है दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। एक और चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर मैंने यहाँ पे बार नहीं डाला, ठीक, यहाँ पे मैंने बार नहीं डाला। क्यों नहीं डाला यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। जब भी हमारा स्क्वायरिंग होता है, स्क्वायरिंग होता है मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारा हम लोग लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको यहाँ पे जो मिलता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। इसलिए जब भी कोई वेक्टर का स्क्वायर होगा तो उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज इट बिकम्स स्केलर। ओके, तो हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन है दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, सो यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ओके। ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा जो एक्सेलरेशन है आपका दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके। ये दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे कि मैंने बताया था क्या होगा, वहां पे जो आपका स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट होगा मतलब क्या होगा? हाँ, इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है हमारा, हम लोग ने देखा अभी v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? v बाय आर। तो अगर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा? v बाय आर दी होल स्क्वायर इंटू आर। दिस कैन बी रिटन एज v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। सो ए आर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। दिस इज योर अनदर फॉर्मूला, ओके। तो बैक टू द टॉपिक, एंगुलर हम लोग बोल रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोला हम लोग ने? स्पीड जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड हमारा कांस्टेंट है। रेडियस जो है, रेडियस वेरी नहीं होगा, रेडियस भी कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है और रादर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज कांस्टेंट। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आप लोग देखोगे ये कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? बिकॉज वहां पे भले ही रेडियस कांस्टेंट होगा आपका, बट वेलोसिटी जो है आपका वो क्या होगा? चेंज होता होगा, ओके। दिस शुड बी क्लियर। Now our next topic is centripetal and centrifugal force, okay? इसको एक डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में ही बता देता हूँ, बेटर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। What is centripetal force? It is a force which is responsible for the circular motion. ये जो force है, this is the force which is responsible for the circular motion. Simple सा example लेते हैं, वो आपने देखा होगा, बचपन में किया होगा, बकेट में पानी भरो, उसको फिर ऐसा कंटिन्यूसली घुमाते रहो, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि पानी गिर नहीं रहा। पानी क्यों नहीं गिर रहा? दैट इज ड्यू टू योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभी हम लोग ने बताया, इट इज अ फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो जब इस पे ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स जब आता है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स
उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हम लोग देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल वर्ड का मीनिंग ये होता है सेंटर सीकिंग, दैट मीन्स वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है इस पार्टिकल पे, तो एट द सेम टाइम एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होता है, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। दोनों का फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स F बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज m ओमेगा स्क्वायर r। माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। नेगेटिव साइन अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कि आपका जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और जो आपका रेडियस वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होगा, रेडियस वेक्टर आपका एक्ट होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ओके, इस फॉर्मूले को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये हो जाएगा, वी नो दैट v इक्वल टू r ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, v बाय r। So F will be equal to m v by r the whole square into r. So F will be equal to m v square by r square into r. This will be equal to m v square by r. ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r। ओके, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, फर्क कहाँ पे आएगा आपका, साइन पे। जैसे कि अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी सेम फॉर्मूला होगा, एफ बार इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर का। बट डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे जो है साइन विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, द फोर्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू circular motion. The force which arises due to circular motion is centrifugal force. Okay, it is directed towards the center of the circle. It is directed away from the center of the circle. पहला पॉइंट क्या बोला हम लोग ने यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दैट इज इट इज अ फोर्स which is responsible for circular motion. Centrifugal force क्या है? It is a force which arises due to circular motion. Then it is directed towards the center of the circle, and this one is it is directed away from the center of the circle. अब वापस उस एग्जांपल पे आते हैं, हम लोग बकेट घुमा रहे थे। ओके, बकेट घुमा रहे थे तो वहां पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे बोला वो फोर्स क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। तो अब मैं बकेट घुमा रहा हूं, जो मेरा मैकेनिकल फोर्स है, जो मैं अपने हाथ से फोर्स दे रहा हूं, दैट इज माई सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होएगा उस बकेट पे या रादर बकेट के वाटर पे, जो क्या करेगा उसमें जो पानी है उसको गिरने नहीं देगा। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो उसको होल्ड करके रखता है अगेंस्ट द ग्रेविटी और उसको क्या गिरने नहीं देता। कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि
आप लोग ने देखा होगा, अगर हम लोग एक कार में, कार अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो हम लोग एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो दैट इज अगेन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज कि हमको पता है अर्थ जो है दैट इज नॉट स्फेरिकल, इट इज रादर समथिंग एलिप्टिकल शेप। ओके, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है, इक्वेटर की तरफ थोड़ा बल्जिंग है और पोल्स की तरफ क्या है, फ्लैट है थोड़ा सा। ये क्यों होता है, जब आपका अर्थ घूम रहा है, अर्थ अराउंड द प्लैनेट सॉरी अर्थ अराउंड द सन घूम रहा है आपका, तो वहां पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जब एक प्लैनेट स्टार के अराउंड घूमता है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, उसका जो शेप है दैट चेंजेस टू एलिप्टिकल। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, सिंपल सा डे टू डे लाइफ का अगर हम लोग देखेंगे, वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन का ड्रायर जो है जब घूमता है तो उसमें जो क्या होता है, जो कपड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टुवर्ड्स दी एंड ऐसा वो चले जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, उसका कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका जो वाटर है वो रिमूव आउट हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है। ओके, इसमें एक और पॉइंट हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट इज इट इज अ रियल फोर्स एंड दिस वन इज इट इज अ स्यूडो फोर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। रियल फोर्स मतलब क्या होता है, वो फोर्स जिसका मेरे को सोर्स ऑफ ओरिजिन पता हो, फोर्स का ओरिजिन पता हो। ओके, स्यूडो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बट उसका ओरिजिन मेरे को पता नहीं है कहां से आ रहा है। जैसे कि वो एग्जांपल पे आ जाते हैं हम लोग, जब व्हीकल टर्न ले रहा था, व्हीकल लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं, हम लोग राइट की तरफ क्या हो रहे थे, आउटवर्ड पुश एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो वहां पे कोई आगे हमको धक्का नहीं मार रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, कोई एक अननोन फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका ओरिजिन पता नहीं है हम लोग को। ओके, तो दैट इज नथिंग बट स्यूडो फोर्स। इसका और एग्जांपल अगर स्यूडो फोर्स का देखोगे आप लोग, फ्रिक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश करते तो ऑपोजिंग फोर्स एक्ट होता है, फ्रिक्शन, कौन लगा रहा है, वो कोई नहीं लगा रहा है बट वो फोर्स वहां पे एग्जिस्ट करता है। रियल फोर्स ऑन दी अदर हैंड क्या होगा, जिसका मेरे को ओरिजिन पता होगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं पुश कर रहा हूँ, तो इसका जो फोर्स का ओरिजिन कौन है, मैं हूँ, सो दैट इज अ रियल फोर्स। ओके, ये 3 पॉइंट हो गए। देन इसके बाद हम लोग फॉर्मूला वाला पॉइंट डाल सकते हैं, इफ यू वांट, यहाँ पे क्या होगा, एफ बार इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, और यहाँ पे क्या था, एफ बार इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक्सप्लेनेशन दे दिया इसमें। और इसमें फिर एक पॉइंट डाल सकते हो आप लोग, दैट इज एग्जाम। सो दिस कंक्लूड्स आवर बेसिक सेक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बचा हुआ।